हेलो दोस्तों, आज हम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी वो दोनों का मिक्सअप हो सकता है परम्यूटेशन हो सकता है कॉम्बिनेशन हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो, दोनों का मिक्सअप हो एक ही प्रॉब्लम में। तो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग in which two vowels must be there and three consonant must be there, you have to form, and the letter will come from the word daughter. So you see that vowels are from this word in the word daughter is A, U, E. There are three vowels and consonants are 1, 2, 3, 4, 5 D, G, H, T, R. So when you have to make 5 letter word, this is the 5 letter word. So see what is going to happen. Out of these 3 letters, 2 letters you have to take which are vowels, and out of these 5 you have to choose 3 letters. So in this question what you can think of, that first we have to select 2 vowels out of these 3. So first you will select like 3C2. This is the way how you can select 2 vowels out of 3, and then you have to select 3 consonant. So 3 consonants out of 5 will be this 5C3, and after getting these 5 letters, now you have to arrange. So understand, this problem is that first you are doing selection. Selection means you are doing combination, and next is you are arranging them physically, means the letter that you have chosen you will be arranging them. It means arrangement you are doing, it means you are doing permutation. So in one question you are doing both. So this is first part is your selection. Now you have selected these 5 letters, you have to now arrange them in order. So you know there are 5 different letters, there are 5 places to be filled. So for this part I would say that you have to apply your permutation. So number of places or number of the letters that you have means n. This is 5, 1, 2, 3, 4, 5, and R is also 5. So in short you can write that as 5 factorial, or you can write this 5p5, and you do this multiplication. So ultimately your answer will be this 3c2, means this is 3, and 3 factorial upon 2 factorial, you can do combination, you can solve 3 factorial upon 2 factorial 1 factorial, and 5c3 is 5 factorial 3 factorial 2 factorial, and this 5p5 is 5 factorial. So you simplify this and you will get the answer. Okay, so this is rest of the calculation you will do yourself. This is very simple calculation. So these are the total words in which you will get 2 vowels and 3 consonants, and this is a mix up of both permutation and combination. Now come to this question number 2. How many words with or without meaning you can form from the word equation at a time so that vowels and consonant occur together? It means you have to see just this way, that there are 2 units. First unit is of vowel and second unit is of consonants. So vowels, you see E is there and U is there, E is there, A, E, I, O. So all 5 vowels are there, and the consonants are, this is Q, T, N, T is, this is at a time. So N,
Now we count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 5 are there, 3 are there. So now these are 2 units. Now these 2 units are to be arranged. You can see there are 2 units, there are 2 places. So 2 units, 2 places can be arranged in 2 factorial ways. So you can say words, yeah, or you can say number of words are, you can write this answer directly, because V and C means vowels and consonants can be arranged in 2 factorial ways. So this is 2 factorial, because vowels and consonant, there are 2 units. So 2 units can be arranged in 2 ways, means 2 factorial ways. Now, but you see that vowels can be arranged themselves within that vowels group, means E, I, O, A. They can interchange their places. So there is this thing, and similarly the consonants Q, T, and can also be interchanged. They will remain together, but their positions can be different. So this 5 vowels can be arranged in 5 factorial ways. Similarly, these 3 consonants can be arranged in 3 factorial ways. Now we have all these numbers, we'll multiply. So this is 2 and this is 6. So this is 2, you write, and 5, you know, 5 is 4 factorial is 24, 5 is 120. So this is 120 and this is 6. So this is 12, 12, this is 6 to the 12, 12, 1440. So these are total number of words. Okay, now see question number 3. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls in the following cases. Question number 3. You have to make a committee of 7 students, and this 7 students, there is a condition कि इन 7 में से आपके पास जो 7 की कमेटी आपको बनानी है वो कहाँ से बनेगी. द रिसोर्स आर 9 बॉयज़ हैं टोटल मिला के और 4 गर्ल्स हैं, और हमें कमेटी बनानी है 7 लोगों की. इन दी फॉलोइंग केसेस, अब आपके पास ये केसेस हैं 1 बाय 1. देर आर 3 केसेस. सबसे पहले केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं. एग्जैक्टली 3 गर्ल्स. आप देखिए, आपके अगर 4 गर्ल्स हैं तो 4 में से अगर आप एग्जैक्टली 3 गर्ल्स ले लेते हैं तो आपके पास फिर बॉयज़ में से कितने आपको चूज़ करने पड़ेंगे. सी इस प्रॉब्लम में सबसे पहले तो ये भी समझना है कि ये प्रॉब्लम आखिर कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है कि ये फिर प्रॉब्लम परम्यूटेशन की है. तो कहीं पर भी आप देखिए कि आपका हर जगह जो आ रहा है कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट कर रहे हो, कहीं भी इन 7 लोगों को आपने अरेंज नहीं किया है, मतलब 7 लोगों को कहीं बिठाया नहीं है या 7 लोगों को कोई ड्यूटी नहीं दी है. तो इट्स लाइक कि जैसे हम जब हमारी क्रिकेट टीम में से हम पहले 17 प्लेयर्स लेकर जाते हैं, 17 प्लेयर्स हम लेकर जाते हैं तो 17 का भी सिलेक्शंस है, 17 का भी जो सिलेक्शंस होता है बहुत सारे होते हैं. मान लो हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ है इंडियन क्रिकेट अगर टीम को लेकर जाना है तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 30 टोटल प्लेयर्स हैं जो हम उनको लेकर जा सकते हैं. 30 में से सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं 17 जो बेस्ट होते हैं फिटनेस के अकॉर्डिंग, जो भी उनका क्राइटेरिया होता है. तो सबसे पहले हमने 17 को सिलेक्ट किया. उसके बाद जिस दिन एक्चुअल मैच होगा क्रिकेट का, उस दिन जब ग्राउंड पर जो जाएंगे प्लेयर्स वो 17 नहीं जाएंगे, वो कितने जाएंगे, 11 प्लेयर्स जाएंगे. तो जब 17 में से क्या होगा, जिस दिन मैच होगा उस दिन आपको 11 और निकालने पड़ेंगे. आपने 11 निकाले और फिर 11 को क्या करना पड़ेगा, आपको फील्ड में प्लेस करना पड़ेगा कि यहाँ पर तुम्हारी फील्डिंग है, यहाँ पर तुम्हारी फील्डिंग है, लाइक दिस इफ़ यू आर गेटिंग योर फील्ड फर्स्ट. सो यहाँ पर कहीं भी अगर देखें तो यहाँ पर कहीं अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिंपली आपका सिलेक्शन हो रहा है. तो 4C3 का मतलब हो गया कि 4 गर्ल्स में से 3 आपने ले ली. अब टोटल आपको देखिए, टोटल जो आपको चाहिए वो 7 चाहिए क्योंकि कमेटी 7 की है. कमेटी 7 में से 3 तो आप पहले ही गर्ल्स ले चुके हैं, तो आपके पास चॉइस किसकी बचेगी, बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे आपको, 4. तो आप इसकी कैलकुलेशन आप अपने आप से कर सकते हैं ईजिली. दिस इज 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू दिस इज 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड दिस इज 5 फैक्टोरियल.
So calculation you will be doing yourself. Now come to this question number second part. At least two girls. What at least two girls means? What does it mean? First you have to understand कि जो at least का मतलब होता है वो क्या होता है. At least का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कम से कम आपके पास 2 गर्ल्स होनी चाहिए. अब आप खुद सोचिए, उसने कहा कम से कम 2 गर्ल्स होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी है? 4. इसका मतलब 2 गर्ल्स भी हो सकती हैं, और हो सकता है 3 गर्ल्स भी हो सकती हैं, और हो सकता है हमारे पास 4 गर्ल्स भी हो जाएं. तो इसकी कंडीशन में कहीं ना कहीं और आपका बार बार यूज़ हो रहा है. तो और के लिए देखिए आप कैसे यूज़ करेंगे कि सबसे पहले आप केस हम ले लेते हैं जिसमें कि हम 2 गर्ल्स मान के चलते हैं, हम 2 गर्ल्स ले रहे हैं, और फिर अगर 2 गर्ल्स लेते हैं टोटल हमें 7 ही बनाना है, तो हमें 5 बॉयज़ लेने होंगे. और अगर हम 3 गर्ल्स लेते हैं तो हमें 4 बॉयज़ लेने होंगे. और अगर हम 4 गर्ल्स ले लेते हैं तो हमारे पास 3 बॉयज़ का ऑप्शन बचता है. तो ये सारा का सारा हमारा सिलेक्शन चल रहा है. तो अब इसको कैसे लिखना है, यू रिमेंबर दिस. जब भी आपका और आ रहा है तो और का मतलब होता है प्लस. दिस और मीन्स प्लस. नाउ एंड दिस इज 2 गर्ल्स एंड I can write this here and also. So and but space is less. So I'm just saying this, you understand. This is 2 girls and 5 boys. तो इसका मतलब है कि पहले आप 4 में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके पास जो 9 बॉयज़ हैं, 9 में से फिर आप 5 को सिलेक्ट करेंगे. इसके बाद 3 गर्ल्स की बात करें तो 4C 3 इंटू 9C 4 हो जाएगा, प्लस 4C 4 इंटू एंड दिस अगेन 9 में से आपको 3 का सिलेक्शन करना पड़ेगा. तो जैसे आप इनको ऐड करोगे ये आपका टोटल वेज आ जाएंगे जिसके थ्रू आप 2 गर्ल्स को एटलीस्ट 2 गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हो. नाउ कंसिडर दिस केस नंबर 3. एटमोस्ट 3 गर्ल्स. पहले तो एटमोस्ट 3 गर्ल्स का आपको मतलब पता होना चाहिए. एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 गर्ल्स को ले जा सकते हैं. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप जब ज़्यादा से ज़्यादा 3 है तो कम से कम कितना हो सकता है? तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो सकती हैं. हो सकता है आप एक भी लड़की को ना लेकर जाओ, एक भी गर्ल ना जाए आप उस टीम में, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप सारे के सारे जो 7 लोग सिलेक्ट होंगे फिर वो सारे के सारे बॉयज़ वाली कैटेगरी में से सिलेक्ट हो जाएंगे. हो सकता है एक गर्ल को लेकर जाइए. अगर एक गर्ल आप लेते हैं तो फिर आपको 7 में मतलब 9 में से फिर आपको 6 बॉयज़ लेके जाने पड़ेंगे. अगर आप 2 गर्ल्स लेते हैं तो 2 गर्ल्स के बाद फिर आपको 5 बॉयज़ लेने होंगे. और अगर आप 3 गर्ल्स लेते हैं तो फिर आपको 4 बॉयज़ लेने होंगे. तो इसमें भी देखिए बार बार और वाली कंडीशन आ रही है. सो इस और कंडीशन को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कैसे लिखते हैं इस चीज़ को. तो सिंबॉलिकली थोड़ा सा लिख के दिखा रहे हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन आप अपने डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को भी आप लिख सकते हो. तो आपकी जो इसमें देखिए कैसे लिखते हैं. पहले हम 0 गर्ल्स लेते हैं तो मतलब 4C 0 कर देते हैं, एक भी गर्ल नहीं होगी. टोटल हमें 7 ही चाहिए, तो 9 में से 7 पूरे के पूरे सारे के सारे बॉयज़ ही वो कमेटी बना देंगे. इसके बाद ये हो गया एक केस. और दूसरा केस हो जाएगा जिसमें कि 4C 1 हो गया, जिसमें आप एक गर्ल का सिलेक्शन करते हैं तो आपको जो 9 है उसमें से 6 बॉयज़ लेने होंगे. और पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास कि आप 4C 2 कर दें, 2 गर्ल करें, एंड फिर आपको जो करना पड़ेगा 9C 5 करना पड़ेगा. और आपके पास केस हो सकता है कि आप 4C 3 कर दें, एंड उसके बाद 9 में से जो आपको लेना पड़ेगा वो 4 लेना पड़ेगा. तो ये सारे केसेस हैं. आपको प्लस नज़र, ये जो और दिख रहा है आपको इसको पता है कि और के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा. जैसे आप प्लस करते हो आपका टोटल आंसर आ जाएगा. Okay, now see question number 4. This type of question is very important. In this question, you see examination word है आपके पास, और आपको इस पे जो वर्ड्स जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं आपको एक डिक्शनरी बनानी है. डिक्शनरी बनानी है. आप सबको पता है कि डिक्शनरी कैसे बनती है. डिक्शनरी में सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले लिखते हैं हम. आप चेक करेंगे कि इसमें ए से स्टार्ट होने वाले क्या हैं, और फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई. बट हमारे को जो क्वेश्चन बोला हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको ई से पहले जितने भी आपके पास डिक्शनरी में ई से पहले जितने भी आपके पास
वर्ड्स बनते हैं आपको वो बताना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ई से पहले जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो होता है हमारा, उसके अंदर कौन कौन से आपके लेटर्स आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ई से जो जितने भी वर्ड बनते हैं आपको वो वर्ड बताने कि ई से कितने वर्ड बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ए है, एग्जामिनेशन का ए है, ए को आपने फिक्स कर दिया। तो अब ए से स्टार्टिंग होने वाले कितने हो सकते हैं, फिर हम चेक करते हैं क्या ऑर्डर में कहीं बी है, क्या बी नहीं है, क्या सी है, नहीं है, फिर क्या डी है, नहीं है, डी के बाद आता है आपका ई। तो ए के बाद जो अगला जो लेटर आएगा वो सीधा सीधा आपका ई आएगा। और वो कह रहे हैं कि ई से पहले वाले, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको वो सारे वर्ड्स बताने हैं जो कि स्टार्ट हो ए से। तो अब और सारे लेटर्स आपको एक साथ यूज़ करने, ये भी आपके पास है कि आपको सारे लेटर्स एक साथ यूज़ करने। तो हम काउंट कर लेते हैं पहले हमारे पास टोटल लेटर्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आर 11। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिकॉज 11 तो ये है, तो फर्स्ट तो ये ऑक्यूपाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो अब आपके पास ये ए फिक्स है, पहली पोजीशन पे ए फिक्स हो गया। तो अब आप देखिए आपके पास जो बचे, आपके पास 10 प्लेसेस बच रहे हैं, और 10 प्लेसेस को आप 10 ही आपके पास लेटर्स भी हैं। तो कितने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं आपको देखना पड़ेगा, बट रिपीटेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ लेटर्स जो बच गए, ए आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो फिलहाल ए को हम हटा देते हैं, हमारी लिस्ट में से ए हट गया, एक ए हट जाएगा। तो हमारे पास जो बचेंगे EXMINATION, तो हमारे पास ये 10 आपके टोटल लेटर्स हैं जिनको आप 10 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो। सो आई कैन राइट दिस हियर, 10 फैक्टोरियल लेटर्स हैं जिनको आप 10 तरीके से 10 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो। दूसरा, इसमें कोई रिपीटेशन है क्या, देख लीजिए एक बार। ए को आप रिपीटेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि ए को आपने यूज करके हटा दिया बिल्कुल। आप देखिए आई आपके पास एक तो यहाँ पर है, एक आई आपके पास ये है, एक एन भी है यहाँ पर, एक एन यहाँ पर भी है। तो आपका ये 2 फैक्टोरियल और दिस इज ऑल्सो 2 फैक्टोरियल, बिकॉज आपका जो आई आ रहा है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एन भी जो आ रहा है वो भी आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर टोटल वर्ड्स लिखकर आप इसको यहाँ पर ऐसे छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टोरियल है तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व इट, बट दैट्स कॉन्सेप्ट इज फाइन अप टू दिस पॉइंट। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सी आपके पास वर्ड है एग्जामिनेशन, आपको एक डिक्शनरी बनानी है और आपको ये बताना है कि कितने वर्ड्स डिक्शनरी में होंगे जो कि ई से पहले आएंगे, मतलब ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड बनेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि आप स्टार्ट करोगे हमेशा ए से। सो ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसके बाद फिर आप बी से स्टार्ट करेंगे, फिर आप सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड लेंगे, फिर डी के स्टार्ट होने वाले लेंगे, फिर लास्ट में हम ई आएंगे। तो ई से पहले वाले हमें बताने हैं। अब ई से जो पहले वाले आपको बताने हैं, इसके लिए आप देखो हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि ए को हमने पहले यूज़ कर लिया यहाँ पर, तो ए खत्म हो गया आपके पास, एक लिस्ट में से आपने उसको हटा दिया तो ए यहाँ फिक्स हो गया। अब जो प्लेसेस टोटल जो लेटर्स हैं हमारे पास वो अब बचे हैं, ए को फिक्स करने के बाद 10 लेटर्स हमें बचे हुए हैं, और 10 लेटर्स को आप 10 लेटर्स में से आई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है और जो एन है वो भी आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। तो क्या करना है अब आपको 10 फैक्टोरियल, तो मतलब 10 लेटर्स हैं, 10 फैक्टोरियल मतलब 10 वेज हो जाएंगे उनको अरेंज करने के लिए, 10 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। सो 10 फैक्टोरियल कर दिया, फिर इसके बाद आप डिवाइड करोगे। सो 10 लेटर्स को 10 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर दिया, एंड रिपीटेशन जो है आई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, एंड भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो आपने 2 फैक्टोरियल से इसको भी डिवाइड कर दिया। सो अब ना तो आपके पास बी है, ना सी है, ना डी है, ना आपके पास अब ई से स्टार्ट होने वाले, मतलब वो सारे के सारे लेटर्स आपके ए वाले ही होंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इस क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस फर्स्ट, कि आपको एक एग्जाम आपके पास है, एक एग्जामिनेशन आपका है जिसके अंदर टोटल 12 क्वेश्चन हैं, टोटल 12 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 में आपके पास 5 क्वेश्चन हैं, एंड जो पार्ट 2 है उसके अंदर आपके पास 7 क्वेश्चन हैं। अब कंडीशन क्या दिया आपको कि किसी भी स्टूडेंट को जो अटेम्प्ट करने टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 12 में से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और कंडीशन ये दे दी है कि आपको एटलीस्ट 3 फ्रॉम, तो कंडीशन आपके पास ये है कि 8 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करनी है, बट उसमें से भी
3 कम से कम हर पार्ट में से होनी चाहिए, मतलब पार्ट 1 में से भी इसमें से 3 कम से कम आना चाहिए और 3 इसमें से कम आने चाहिए। तो अब हम कंडीशन हमारे पास लग गई, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए कि पहली कंडीशन जो पार्ट 1 में है वो आपको 3 क्वेश्चन आपने ले लिए पार्ट 1 में, तो आपके पास टोटल 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपके पास 3 इसमें से ले लिए तो 5 बच जाएंगे। तो 5 के लिए आप, या फिर मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 5C3, ये आपने 3 क्वेश्चन पहले पार्ट में से ले लिए, एंड फिर आपको एंड का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, एंड फिर जो इस वाले पार्ट 2 में से है 7, उसमें से आपको कितने लेने पड़ेंगे। अगर टोटल 8 चाहिए, पहले आप 3 ले चुके हैं, तो आप इसमें से आपको 5 लेना होगा। और अगला क्या केस हो सकता है जस्ट सी, कि आपने पहले इसमें से 4 पार्ट्स ले लिए, अब इसमें से 4 लिए तो टोटल मिला के 8 करने हैं, तो 7 में से जो दूसरा पार्ट है उसमें से आपके पास 4 आ जाएंगे। और एक क्या केस हो सकता है कि आपने पहले पार्ट में जो 5 दे रखे, मान लीजिए पार्ट 1 है, उसमें 5 क्वेश्चन किसी को इजी लगते हैं, तो उसने 5 इसमें से अटेम्प्ट कर लिए, तो 5C5 हो गया। एंड अब जो 3 क्वेश्चन उसके रह गए हैं उसमें से कोई 3 क्वेश्चन उसने पार्ट 2 में से सिलेक्ट कर लिए, 7C3। तो अब आप देखिए इसमें सारे जितने भी केसेस हैं, ये केस 1, केस 2, केस 3 पॉसिबिलिटी है, आप इनको सिंपली ऐड कर दीजिए। सो टोटल वेज जो आपके पास आएंगे क्वेश्चन सेलेक्ट करने के, वो आ जाएगा 5C3 इंटू 7C5 प्लस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3। सो कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो इसकी इजीली। ओके, सो जस्ट सी दिस। ओके, नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि आपको पता है कि देर आर जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अब 52 में से आपके पास अगर हम किंग देखें तो किंग आपके पास 4 होते हैं, और अगर हम नॉन किंग देखते हैं, नॉन किंग जो होते हैं फिर आपके पास 48 बच जाते हैं, जिसमें किंग को छोड़कर सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। कलर वलर सब कुछ हम मिक्स कर रहे हैं, सिंपली हम 2 तरीके से कार्ड्स को कैटेगराइज कर रहे हैं, किंग और नॉन किंग में। इसके बाद आपको 5 कार्ड का एक कॉम्बिनेशन चूज करना है। देखिए चूज करना है, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम, साफ साफ कहीं अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। इन विच एग्जैक्टली 1 किंग हैज टू बी देयर, उसमें एक किंग जरूर होना चाहिए। तो अब आप सोच के देखिए कि अगर एग्जैक्टली 1 किंग चाहिए तो 4 कार्ड्स तो आपके कहाँ से निकलेंगे, 4 कार्ड्स तो आपके यहाँ से आएंगे, और एक कार्ड जो आएगा आपका वो यहाँ से आएगा। तो इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं। सो टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन आप लिखिए, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन, जिसमें एग्जैक्टली का मतलब होता है कि केवल और केवल एक। तो 4C1 इसका मतलब हो गया एग्जैक्टली एक किंग आपने चूज कर लिया, तो जो बाकी कार्ड्स आएंगे वो कहीं ना कहीं जो कैटेगरी हमने जो दूसरी कैटेगरी बनाई है नॉन किंग की, वो वहां से आएंगे। तो 48C4 कर देंगे। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि 48 से जब आप 4 फैक्टोरियल करेंगे तो इसको कैलकुलेशन करके आप इसको इजीली लिख सकते हो। सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस 4C1 को आप लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल, दिस इज 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज 3 फैक्टोरियल। 48 को आप लिख सकते हो 48 इंटू दिस 48 फैक्टोरियल, दिस इज 4 फैक्टोरियल, दिस इज एंड दिस विल बी 44 factorial. So simplify this calculation and it can be simplified very easily. So simplify this, you will get the answer. Now come to this question number 10, which is very important question. What is question number 10? ये question ज़्यादातर आपसे रिलेटेड है कि कई बच्चे जब हम पिकनिक के लिए बाहर जाना होता है, कोई एक्सकर्शन पार्टी होती है, तो आप में क्या कंडीशन लगती है कि हम तीनों दोस्त, 2 या 3 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, हम जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे वरना हम में से कोई नहीं जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ वैसा ही है कि एक क्लास है जिसमें 25 स्टूडेंट्स हैं। अब 25 स्टूडेंट्स में से अब स्कूल वालों ने डिसाइड किया कि हमें 10 जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ट्रिप पे लेके जाना है, मान लो मैं हलचोरी ट्रिप पे लेके जाना है। तो 10 बच्चों को हमें किसी ट्रिप पर लेकर जाना है। अब कंडीशन क्या आ गई कि यहाँ पे 3 बड़े पक्के दोस्त मिल गए जी, जो इसको आप 3 बहुत पक्के दोस्त हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि या वो जाएंगे तो तीनों इकट्ठे जाएंगे वरना वो तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तो अब आपको ये दिखना है कि ऐसे कितने आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हो जिसमें वो 10 बच्चों को आप लेकर जाएं। तो इसके अंदर भी देखिए केसेस होंगे। केस 1 हो सकता है, केस 1 होगा ऑल 3 गोइंग, ऑल 3 फ्रेंड्स गोइंग, एंड केस 2 होगा जिसमें
none of them going. सो आपके पास ये जो दो केसेस बन रहे हैं, इन दो केसेस को आपको समझना है कि एक्चुअल में करना क्या है। अगर वो पहले तीनों दोस्त डिसाइड कर लेते हैं कि हम तीनों को जाना है, अगर वो जाना डिसाइड करते हैं तो देखिए, अगर पूरी क्लास को आप देखा जाए तो पूरी क्लास दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट में 3 स्टूडेंट का ग्रुप है और एक पार्ट में आपका बाकी जो बच गए वो दूसरे पार्ट में आ गए। मतलब एक ग्रुप 3 स्टूडेंट का है और एक ग्रुप 22 स्टूडेंट्स का है। तो पहला केस जो होगा, हम टोटल वेज एक साथ अब लिखते हैं। आपको केसेस पता है तो इनको आपको कंडीशन के हिसाब से प्लस करना होगा, क्योंकि केस 1 हो सकता है या फिर केस 2 हो सकता है। तो पहला केस देखते हैं, ऑल 3 आर गोइंग। तो इसका मतलब 3 के 3 जा रहे हैं, तो 3 के 3 जा रहे हैं तो 3C3, इस वाले ग्रुप में से तीनों के 3 चले गए। बाकी जो 22 का ग्रुप बच गया, 22 ग्रुप में से फिर हमको लेके कितने जाने पड़ेंगे, टोटल हमें 10 लेके जाने हैं, टोटल आर 10। तो अब जो 7 आएंगे वो हमारे पास इस वाले ग्रुप में से आएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लो कि तीनों में से कोई जा ही नहीं रहा, तो मतलब इसको तो आप खत्म ही कर दो, 3C0, इसमें से कोई नहीं जा रहा। तो अब जो 10 ले जाने हैं आपको, अगर वो तीनों ने मना कर दिया, जो 10 लेके जाएंगे वो कहाँ से लेकर जाएंगे आपके, फिर जो 22 बच जाएंगे बच्चे उसमें से लेकर जाएंगे। सो इस तरीके से आप इनका टोटल वेज निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।